أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سورہ محمد ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ احقاف مکمل کر لیا۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد کا دوسرا نام ہے سورہ قتال، کیونکہ اس میں جہاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہاد بمعنی قتال، جو شرعن جہاد جسے کہتے ہیں نا، وہ قتال ہی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نارمل لڑائی نہیں، ہر جنگ کو جہاد نہیں کہا جاتا۔ جہاد وہ ہوتا ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے دشمن جو کلمت اللہ کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے سے روکتا ہے طاقت کے ذریعے، تو اس وقت جو جنگ کی جاتی ہے اس نیت سے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد دفاعی بھی ہوتا ہے اور اقدامی بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائے تو اس وقت جو ہے قریش مکہ خصوصاً اور تمام کفار جو اطراف کے تھے عموماً، وہ مسلمانوں پر اور مدینے پر دھاوا بولنے شروع کر دیے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات ہوئی ہیں یا سریات ہوئی ہیں وہ دفاعی تھے۔ غزوہ بدر لے لیں، غزوہ احد لے لیں، کہ ہم پر حملہ ہوا، ہمارا نام و نشان مٹایا جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو وہ دفاعی۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا 6 ہجری میں، اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ ہوا کہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ دونوں جانبین جو ہے جہاد نہیں ہوگا، مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ حملہ نہیں کریں گے، ہم حملہ نہیں کریں گے۔ پھر کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اس ایگریمنٹ کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، خلاف ورزی کر دی۔ تو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد کیا مکۃ المکرمہ میں، اور مکہ فتح ہوا، جیسا کہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو قتال یا جہاد کا مطلق معنی یہ کر دینا کہ جد و جہد ہے۔ دیکھیے صلات کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھو تو دعا ہے، لیکن ہم جب کبھی بھی صلات کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ وہ مخصوص عبادت ہوگی نا۔ ہاں کہیے۔ ہاں وہ مخصوص، ہاں نماز کو کہیں گے، وہ مخصوص عبادت جس میں رکوع سجدہ ہوتا ہے اور بعض چیزوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے، شرائط فرائض وغیرہ ہوتے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی آج کل یہ شروع کر دے نماز کے بارے میں کہ بھائی نماز سے مراد جو ہے صلات عربی لفظ ہے، اس کے معنی دعا ہیں، تو دعا کر لیں گے تو جو ہے نماز صلات ہو جائے گی۔ تو آپ کیا کہیں گے نا، شریعت کے معنی کو بدل رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا اگر آپ کتاب الزکوٰۃ آپ نے الفقہ المیسر میں پڑھا ہوگا تو اس میں آپ کو بتایا ہوگا کہ لغوی معنی جو ہے اس کے پاک ہونا ہے، بڑھنے کے آتے ہیں۔ شریعت کی شرعی معنی یہ ہیں کہ جو ہے کہ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہو جائے، سال اس پر گزر جائے، تو اب کیا ہو جائے گی؟ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، وہ 2.5% ہے۔ اب کوئی آج کل شروع کر دے کہ نہیں زکوٰۃ کے معنی جو ہے پاکیزگی کے ہیں، تو اپنے مال کو جو ہے دھو دھو کر پاک کر لیں، یا کچھ بھی الگ معنی بیان کرنے شروع کر دیں تو لفظی معنی کی بنیاد پر، تو آپ کیا کہو گے کہ یہ اسلام کے اصطلاحی جو الفاظ ہیں ان کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے، یہ بندہ جو ہے گمراہ ہے۔ اسی طرح قرآن اور سنت میں جہاں جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اکثر جگہ اس کا مطلب ہے قتال۔ اب دنیا بھر میں جو جہاد کو جو ہے دہشت گردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھی بات لکھی۔ یہ بات انہوں نے لکھی کہ جہاد کے لیے مرکزیت شرط ہے، اسلامی سلطنت ہو، خلیفہ ہو، ٹھیک ہے۔ امامت صرف شرط نہیں ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
मक्के मुकर्रमा में थे तो उस वक्त जो है लोगों के पास मुसलमानों का मर्जा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत मौजूद थी, लेकिन जो मरकजियत चाहिए, जो सल्तनत के जो वो चाहिए मरकजियत, वो नहीं थी। जब मदीने तैयबा हिजरत किए तो वहां पर इमामत तो पहले से थी, अब मरकजियत भी हासिल हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है जिहाद का हुक्म दिया। अब ये सूरह मोहम्मद जो है बिल्कुल हिजरत के मुत्तसिल नाजिल हुई है, बाज़ तो जो है आगे की भी आयतें हैं, तो हिजरत के बाद जिहाद का हुक्म आया ना। तो मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि अगर जिहाद दुरुस्त हो जाए, जिहाद का निज़ाम, तो दहशतगर्दी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। क्यों? जिहाद का मकसद क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन से फसाद को दूर करना। तो जो लोग भी फसाद मचा रहे हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है वो हकीकतन अगर हो तो, और जिनका नाम नहीं लिया जा रहा वो, तो जो भी जमीन में फसाद मचाएगा तो जिहाद के जरिए इस्लामी सल्तनत क्या करेगी? उस फसाद को खत्म करेगी। तो खैर इस सिलसिले में जो है बहुत सी जो है किताबें हैं, ठीक है, जिसको पढ़ना चाहिए। नहीं कि इस लफ्ज का जो है जो गलत मतलब से जो है गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और खुसूसी तौर पर ये सेक्युलर्स जो होते हैं या गैर मुस्लिम्स में जो कट्टर होते हैं, वो कट्टर तो है ही, सेक्युलर भी जो है जिहाद को जो है टेररिज्म से जो कनेक्ट करते हैं, तो हम उनको क्यों सुनते हैं, हम उनको अप्रिशिएट क्यों करते हैं कि वहां पर जो है टेररिज्म हुआ? क्या इसराइल कर रहा है तो वो टेररिज्म नहीं है ना? तो उसको नहीं कहा जाता, या बाज लोग कह देते हैं। तो उसके अलावा जो जिहाद की शराइत हैं, जो चीजें जरूरी हैं, फुक़हा ने जो है जो बातों को लिखा है, उन बातों को सामने रखकर जो कर रहा हो, तभी तो इस्लामी हुकूमत जो है जहाँ है वहां पर अगर जिहाद हो रहा तो हो रहा है। लेकिन अगर अमीर ना हो, मरकजियत ना हो, तो वहाँ शरई तौर पर जिहाद की इजाज़त नहीं होती है। ठीक है ना? और भी तफसीलात है जो है आप किताबों में पढ़ सकते हैं, या इस सूरे की तफसीर में जो मुफस्सल तफासिर हैं वहां पर भी आपको बातें मिल जाएंगी, और फिर की किताबों में तफसील से मिलेंगी। लेकिन आप इस फैक्ट्री में ना जाएं जो जिहाद को सिर्फ जिद्दोजहद कहकर जो है बचने की कोशिश करते हैं। तो जिहाद के मैंने क्या, जिद्दोजहद जो भी स्ट्रगल होगी वो जिहाद होगी। तो कुरान और सुन्नत में अक्सर जगह जिहाद के मैंने, जिहाद जब कहा गया है जिहाद फी सबीलिल्लाह, तो 99%, या मैं थोड़ा एहतियात कर लूं तो 90% तो किताल के मायने में वो आया। तो आप उसको जो है बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना? अब मैं इसके आम तौर पर मिसाल देता हूं कि लोगों को समझने के लिए, कि अगर आपसे गैर मुस्लिम का इंटरेक्शन हो और वो कहे कि भाई क्या आप लोग जो है लोगों को मारते हैं, करते हैं, तो हमारे मुल्क की अपनी फौज है ना, फौज का काम क्या होता है? गुलाब के फूल नहीं बांटते ना। अब जंग हुई थी तो जंग हुई वक्त क्या हुए, फौजें क्या करती हैं? किताल ही करती हैं, सामने वाले पर हमला करते हैं। वो हमला कर रहा और हम जो है फुल देते बैठे तो नहीं होगा ना। तो जैसे पुलिस का काम होता है, हर महकमा होता है, तो इस्लामी सल्तनत में जो इस्लामी सल्तनत की हिफाजत करे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कवानीन की हिफाजत करे, जो इला कलिमतिल्लाह के लिए जो है आगे बढ़े, वो फौज जो है मुजाहिदीन की होती है। उसी को जो इस्लाम की टर्मिनोलॉजी में जिहाद फी सबीलिल्लाह कहा जाता है या क़िताल फी सबीलिल्लाह कहा जाता है। आप अच्छे से किसी गैर मुस्लिम को समझाएंगे तो वो बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि अगर हुकूमत होगी तो हुकूमत की हिफाजत के लिए, हुकूमत की रियाया की हिफाजत के लिए, उसकी बाउंड्रीज की हिफाजत के लिए आपको एक फौज होनी पड़ेगी। वो जो फौज को मुजाहिद कहते हैं, वो फौज के अमल को क्या कहते हैं? जिहाद कहते हैं। तो उस तरीके से आप समझा देंगे। अब कोई नहीं समझा तो हमको उसकी वजह से अपने मायने बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की विदाई 9 साल की उम्र में हुई, मुत्तफक अलैह बात। अब उस पर जो है 1500 साल गुजर गए, किसी ने एतराज नहीं किया। कुछ चंद साल पहले उनसे एतराजात शुरू हो गए, तो उन एतराजों की वजह से हम मतलब बदल दें कि जो है कि 9 साल को, जो 9 साल में विदाई हुई, 9 साल को आप जो है 18 साल कर दें, और इधर से उधर से दलाइल को तोड़ मरोड़ के पेश करें, तो ये आपकी गलती है ना। आप किसी के कहने की वजह से, किसी एतराज की वजह से मुत्तफक अलैह बात को आप चेंज नहीं कर सकते। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में 19 साल या 18 साल की लड़की को देखा, वो नानी है। तो उस जमाने में बुरी बात नहीं थी, 18 साल की लड़की नानी होना, बोले तो वही 9 साल में जो है उनको औलाद हो, फिर 9 साल में उनकी बच्ची की औलाद हो जाए, तो जब जाकर वो नानी बनेंगे। तो किसी के एतराजात की वजह से हम अपनी जो मुत्तफक अलैह बातें हैं उनको रिजेक्ट करना, ये एक दानिशमंद
बनने की अलामत नहीं होती। ठीक है, खैर ये तो था मुख्तसर सा तारुफ। अब हम तर्जुमे की तरफ चलते हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम। अल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाहि, और दूसरों को ब्रैकेट में आ जाएगा, वसद्दू, और वो रोकते हैं, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से। ठीक है ना, जो भी अल्लाह के रास्ते में जो है मुसलमान होना चाह रहा है उसको आप जो है रोकथाम लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, जो भी जो है दीन का काम करना चाह रहा है आप उसको जो है रोकथाम लगा दे रहे हैं। अज़ल्ला अमालहुम, उनके तमाम आमाल बर्बाद हो जाएंगे। अज़ल्ला गुमराह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आमालहुम उनके आमाल। और उनके कंपैरिजन में वल्लज़ीना आमनु, और जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती, और नेक आमाल किए, व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोग ईमान लाए उस चीज पर, उस बात पर, उस किताब पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। देखिए यहां पर ईमान लाए कॉमन आ गया, ये आम हुक्म था। उसके बाद यहां पर जो है अत्फ हुआ खास पर, कि और वो लोग उस चीज पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। तो इस आयत से, इस टुकड़े से इस बात की तरफ इशारा है कि अब जो ईमान मोतबर होगा वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मोतबर होगा। सिर्फ अगर इनसे पहले वाले अंबिया पर, जैसा यहूदी थे मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते थे, ईसाई थे ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते थे, उनका ईमान अब मोतबर नहीं होगा, पूरी पुरानी बातें मनसूख हो गई। वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है वो हक है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, उनके परवरदिगार की तरफ से। कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम, तो उनके तमाम बुरे, उनके जो गुनाह होते हैं, सय्यिआत हैं, उनका ये क्या हो जाएगा, कफ़रा, उनको अल्लाह ताला उनके गुनाह उतारेंगे, यानी गुनाह माफ करेंगे। व अस्लहा बालहुम, और उनके हाल को दुरुस्त कर दिया। यानी जो लोग ईमान लाए, नेक आमाल किए, और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज नाजिल हुई यानी कुरान, उस पर ईमान लाए। और यहाँ पर जो है ये हाइफन के जरिए बात है, जुमले मोतरिजा कहते हैं कि वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और वो जो है उनके परवरदिगार की तरफ से हक है। कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम, तो उनके जो है गुनाह जो है ना उनका कफ़ारा हो। व अस्लहा बालहुम, बालहुम जैसा छींक के जवाब में कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में कहते हैं यरहमुकल्लाह, यहदीकुमुल्लाह युस्लिह बालहुम, तुम्हारे अहवाल दुरुस्त हो जाए। तो वह अस्लहा बालहुम, और इसके जरिए क्या होगा, उनके और उनके अहवाल संवारेंगे। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं बालहुम से मुराद जो है दिल के मायने भी आते हैं। तो अस्लहा बालहुम, और उनके दिलों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है दुरुस्त कर देंगे, कि उनके अंदर टेढ़ापन नहीं होगा, और जो कुफरिया ख्यालात वगैरह आते हैं या कुफर की तरफ मायल होने की बातें आती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो ईमान लाने का फायदा क्या होगा, कि पूरे पुराने गुनाह जो है उनके माफ हो जाएंगे। ठीक है, वह अस्लहा बालहुम, और उनके अहवाल, हाल प्रेजेंट दुरुस्त हो जाएगा। और एक महीने है कि उनके कुलूब को भी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुनव्वर कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे। ठीक है, बाकी इंशाअल्लाह आगे। अस्सलाम वालेकुम।